इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुलवामा हमले का बदला जिस तरीके से लेना था, जो मांग पूरे देश से उठ रही थी, भारत ने एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और थोड़ी देर पहले विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का ब्यौरा दिया कि आखिर स्ट्राइक किस तरीके से की गई और क्या कुछ दिमाग में रखकर भारतीय सेना ने ये एयर स्ट्राइक की। क्या कुछ कहा है विदेश सचिव ने, सुनवाते हैं आपको। On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you. This concludes the briefing. Thank you. तो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 2 साजिशें की गई थी, उसका किस तरीके से बदला लिया गया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से कायराना हमला किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, उसके जवाब में 29 सितंबर को, और दूसरा पुलवामा हमले की तस्वीर 14 फरवरी 2019 को, और पुलवामा का बदला भी भारत ने लिया है। 26 फरवरी 2019 को जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सबक सिखाने की बात सामने आई, लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरेगा? सवाल यह भी है कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद जो कार्रवाई
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई। जिस तरीके से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने थे उनको बर्बाद किया गया, इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर बढ़ेगा और क्या उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर कुछ पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार बेनकाब होता है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 29 सितंबर 2016 की है। उसके बाद हम आपको 26 फरवरी 2019 की जो आज की तस्वीर है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो 12 दिन में पुलवामा हमले का बदला भारत ने ले लिया है। 14 तारीख को जिस तरीके से पुलवामा में एक आत्मघाती हमला किया गया, उसमें जवानों की शहादत हुई, उसके बाद आज सुबह एक बड़ा एयर स्ट्राइक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय जवानों ने किया, भारतीय एयरफोर्स ने किया। इसकी तारीफ हो रही है। देश भर में जो लोग हैं वो ढोल नगाड़े बजाकर, मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। तो आतंकिस्तान पर एयर अटैक हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या स्थितियां इससे बदलेंगी और क्या पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बंद हो जाएंगी। क्योंकि पहला उरी हमला जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद 29 सितंबर 2016 को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। पाकिस्तान की पूरी दुनिया भर में किरकिरी हुई। उसके बाद पठानकोट का जो हमला हुआ उसमें भी बार बार सबूत पाकिस्तान मांगता रहा। सबूत मिलने के बाद उसकी क्या हरकतें होती हैं वो भी सबको पता है। पुलवामा में जो तस्वीर बनी उसके बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग ये चाह रहे थे कि इस पूरी घटना का बदला होना चाहिए, उस साजिश का बदला होना चाहिए। वो भी इंडियन एयरफोर्स ने ले लिया। पुलवामा का बदला लिया गया, एयर स्ट्राइक की गई बालाकोट में, और जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर्स हैं उनमें भी कई के मारे जाने की खबर है। तो 12 दिन में पुलवामा हमले का बदला तो लिया गया, लेकिन क्या इस बदले के बाद तस्वीर बदलेगी या फिर साजिशें होती रहेंगी, बदला हम लेते रहेंगे पर पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेगा? ये अहम सवाल हैं कुछ, और सभी के मन में ये सवाल है भी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी वत्स साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। और हमारे साथ आशीष कुमार सक्सेना जी हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले सर आप ही के पास आना चाहते हैं। 2 हमलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पाकिस्तान की 2 साजिशों की तस्वीर दिखाई, और भारत ने किस तरीके से रिटेलिएट किया, किस तरीके से सबक सिखाया, उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात इसी पे करेंगे कि जो आज कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई है ये कितनी कठिन थी, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को भी मालूम था कि चर्चाएं चल रही हैं, भारत बदला लेगा। पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो हो गई थी, इस बार चुनौती कितनी बड़ी थी? इस बार जो भारतीय वायुसेना ने जो करके दिखाया है, और ये जो है पुलवामा अटैक के 12 दिन के अंदर किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक है ये जो तैयारी की गई है, यहाँ पे जो है बालाकोट में जो टेररिस्ट कैंप जो जंगलों में है जी, उसका जो है पूरा सर्वे किया गया, उसके फोटोग्राफ से उसका पूरे कोऑर्डिनेट लिए गए हैं। और भारतीय वायुसेना ने जो समय का जो चयन किया गया, सुबह 3:40, और जो जहाज चुना है मिराज 2000, जो कि लेजर बॉम्ब और लेजर गाइडेड सिस्टम को कैरी करता है। तो ये जो है बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। और अब जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है जैसे मोहम्मद के बालाकोट जो टेररिस्ट सबसे बड़ा टेररिस्ट कैंप है, उसके ऊपर 3:40 पे 12 जहाजों ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि जो इसमें जो लेजर गाइडेड सिस्टम है वो लेजर बीम जो है टारगेट को इल्यूमिनेट करता है, उसके ऊपर जो है लेजर गाइडेड बॉम्ब चलता है। तो इसलिए जो है ये जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जो अटैक किया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कोई भी सिविलियन को हताहत नहीं हुआ है। तो हमारी दुश्मनी जो है वो टेररिस्ट से है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। और हमने आज जैसे मोहम्मद को एक सबक सिखा दिया कि अगर तुम करोगे इसका बदला अभी नहीं और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा मिलने के लिए हम तैयार हैं। जी, रिटायर्ड कर्नल बीबी वत्स साहब, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरफ विदेश सचिव ने इशारा किया, एक चेतावनी भी देने की कोशिश की गई पाकिस्तान को कि 2004 में जो आपने वादा किया था कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन यह बात किसी से नहीं छिपी है कि क्या कुछ पाकिस्तान की जमीन पर होता है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होता है। क्या आपको लगता है कि जो ये आज की कार्रवाई हुई है इसके बाद कुछ स्टैंड में पाकिस्तान के अंतर आ सकता है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सबूत दीजिए, हम कुछ कार्रवाई करेंगे, या फिर पाकिस्तान फिर कुछ दिन में ऐसा ही हो जाएगा? मेरे विचार में जो आज कार्रवाई हुई है वो बहुत काबिल तारीफ कार्रवाई है,
और हमारे देश की वायुसेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का, जिसमें उन्होंने हमारे 40 जवानों को अपनी करतूतों से शहीद किया, उसका बहुत माकूल जवाब दिया है। और इसके लिए सभी देशवासियों को और डिफेंस फोर्सेस को हार्दिक हार्दिक बधाई। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इससे सुधरेगा? मेरे विचार में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक सरकार नहीं है, वहां पर सिविलियन सरकार नहीं है, वहां की सरकार आर्मी चलाती है और आर्मी के थ्रू ISI जो है नीतियां तय करती है। और कश्मीर बैशिंग, इंडिया बैशिंग उनका पावर में रहने का एक मुद्दा है जी। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान जो कश्मीर में पूरी फंडिंग पाकिस्तान से ही हो रही है। तो ये मेरा सोचना है कि अब मैसेज देने की जरूरत नहीं है। उड़ी के बाद में हमने मैसेज दिया था पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके कि आप सुधर जाओ, वरना हम कैपेबल हैं आपको सुधारने के लिए। लेकिन अभी जो कार्रवाई की है वो एक सीरीज ऑफ कार्रवाई में मेरे विचार में पहली कार्रवाई है, जो पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश के साथ साथ में पनिशमेंट की पहली कड़ी है। और हर तरीके से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और खासतौर से इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर में हर प्रकार का शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब पहले से ही है। और अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को और हम खराब कर सकते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो रोककर, पानी रोककर, ताकि उनका पंजाब के अंदर में जो ग्रीनरी है जिससे पूरे पंजाब को खाना मिलता है, जिससे वो टेररिस्ट को खाना खिला रहे हैं, और हमारे यहाँ के पानी से, तो उस ट्रीटी को अगर हम रोक देते हैं तो पाकिस्तान 6 महीने के अंदर में घुटने में आ जाएगा। इस एक अकेली स्ट्राइक से पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट मानने वाला नहीं है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ को अब सीधा करने नहीं कर सकते हम, ये सब जानते हैं। उसको तो काटना ही पड़ेगा। और पहला सर्जरी हम इस एयर स्ट्राइक द्वारा कर चुके हैं। ठीक है, मतलब और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब एक और चीज, बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं हमारे, जो टेररिस्ट के लिए जो काम कर रहे हैं, जिनकी मदद के बिना ये पुलवामा टाइप की हरकतें नहीं हो सकती थी, उनको आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं, या अगर नहीं हुए तो अब करिए। और उनको राष्ट्रद्रोह के अंदर में आप कैद करिए। वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। हमारे देश की जो फौजें हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों को भी देश के विरुद्ध सख्ती के साथ निपटना होगा, जो भारत में रह रहे हैं और विदेशी जमीन पर जो आतंकवाद पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन उनसे कैसे निपटेंगे, ये भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष कुमार सक्सेना जी, सवाल एक ये भी है जो आम आदमी समझना चाहता है। जिस परिस्थिति में एयर स्ट्राइक हुई है, ये वो परिस्थिति है जब भारत की तरफ से साफ तौर से कहा जा चुका था, प्रधानमंत्री ने कहा था, रक्षा मंत्री ने कहा था, सभी ने साफ कर दिया था, बदला तो हम लेंगे, हम चूड़ियां पहनने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर था, पाकिस्तान की सेना भी हाई अलर्ट पर थी। जो सेनाध्यक्ष थे वो बॉर्डर का दौरा कर रहे थे, ये बता रहे थे कि हम कितने लोगों ने कहा कि हम परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन इस परिस्थिति में अगर इतना बड़ा प्लान तैयार होता है, इतनी बड़ी स्ट्राइक होती है, सर ये संभव कैसे हो जाती है और किस तरीके की सावधानियां लेकर एयरफोर्स आगे बढ़ती है? अब ये लोग समझना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार जो है एयरफोर्स का सबसे पहले यूज किया गया है। पाकिस्तान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एयरफोर्स को पहले यूज करेंगे। जो अमूमन होता है कि पहले जो है आर्मी जाती है, फिर एयरफोर्स को बाद में बुलाया जाता है, तो ये पहली बार एयरफोर्स का यूज हुआ था और ये सरप्राइज है पाकिस्तान के लिए। और जहां तक जो है ये जो है जहाज जो चुना गया और जो प्लानिंग की है वो बहुत बखूबी की गई है, इसलिए हम जो है वायुसेना को जो है बधाई देते हैं कि इस तरह से उन्होंने किया है। और जहां तक मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो है जो हमारा जो रुख अख्तियार कर रही है भारत के पास आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ बोल रहे हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। हमारे सैनिक ले रही है, इसीलिए हमारे पार्टी की ओर से और सभी पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे वो मजबूत रहे और हमारा पूरा उनको सपोर्ट है। तो बधाइयां दी जा रही हैं, राजनीतिक वर्ग भी बधाई दे रहा है। आशीष सर आप। हाँ जी, जो मैं कह रहा था कि जो रुख अख्तियार किया है भारतवर्ष ने कि हमने म्यांमार में जाके टेररिस्ट के कैंप को तबाह किया,
उसके बाद जो है हमने उरी हमले के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, और इसके बाद जो है अभी जो है आज की तारीख, आज सुबह जो है हमने ये स्ट्राइक किया है। तो हमने जो वो रुख अख्तियार किया है जो अमेरिका और इजराइल करते हैं। इजराइल भी जो है सब पड़ोसी दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वो जो है जैसे भी उनके पास जो रॉकेट अटैक होता है उसका बदला लेते हैं। अगर उनका एक आदमी मारा जाता है तो उसके जिसने भी मारा है वो चाहे दुनिया के किसी कोने में जो है हो, तो मोसाद जो है उसको ढूंढ के मारती है। तो अब हमने ये बता दिया है कि हम भी उसी कैटेगरी में है, अगर हमसे अगर आप लेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे मोहम्मद ने अगर ये पुलवामा अटैक जो कराया है, ये अटैक, इसका उसको बदला मिलना चाहिए था और बदला दे दिया है। और अगर इसके बाद भी कोई अगर ये इस तरह का भ्रम रखे कि हम अटैक करके बच जाएंगे, तो हम उनकी जमीन पे जाके उनको वहीं तबाह करेंगे। जी बिल्कुल। एक सवाल और भी है, आप लोगों ने परिस्थितियों को देखा है, जमीनी स्थितियों को आप समझते हैं। ये बालाकोट का जो रीजन है, ये अगर वहां पर कोई ऑपरेशन करना है, थल सेना करे या फिर वायु सेना करे, ऑपरेशन के लिहाज से कितना खतरनाक इलाका है और कितनी खतरनाक ये पूरी एयर स्ट्राइक रही है अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो? ये जो बालाकोट का रीजन है, ये जो है घना जंगल है और जो है पीओके में है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है और कोई स्ट्राइक होना मुश्किल है, क्योंकि कितना घना जंगल है, उनका बहुत बड़ा कैंप है। इसमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन वो ये था कि हम मिराज 2000 को यूज किए। तो जो चयन हुआ है जहाज का और जो प्लानिंग हुई है वो बखूबी हुई है। इनफैक्ट हम आज ये भी कहना चाहेंगे कि कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 देर से यूज हुआ। अगर वो पहले यूज होता तो इतने हमारे जो है जवान शहीद नहीं होते। बिल्कुल। बीवी वत्स साहब, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि ये एयर स्ट्राइक तो कर दी गई, एक सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी, लेकिन अगर स्थायी समाधान ढूंढना है तो उन लोगों को भी पकड़ना होगा जो लोग भारत में बैठे हैं, भारत की खाते हैं पर गाते पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के आतंकियों के हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक होगी आज शाम 5 बजे, और इस सर्वदलीय बैठक में जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है उसकी जानकारी सभी दलों को दी जाएगी, सभी नेताओं को दी जाएगी। शाम 5 बजे यह बैठक बुलाई गई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस पूरे एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी दल के नेताओं को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी जाएगी। शाम 5 बजे विपक्ष के नेताओं को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जानकारी देंगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस एयर स्ट्राइक का ब्यौरा दिया है, उनसे बातचीत करके इसकी जानकारी दी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी साजिश रची गई थी उसके बाद पूरा देश जवाब भी मांग रहा था और ये चाह भी रहा था कि जो सैनिकों की शहादत हुई है उसका बदला भारत आखिर कब लेगा। और बार बार ये मैसेज भारत की तरफ से दिया भी गया था कि इसका बदला हम लेंगे, और वो स्थिति बनी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे बुलाई है और उसके बाद सभी दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से भारत ने एक कड़ा कदम उठाया है। रिटायर्ड कर्नल बीवी वत्स साहब हमारे साथ बने, सर आपके पास ही आ रहे हैं। जो चुनौती है वो चुनौती क्या ये ज्यादा बड़ी है कि हम एयर स्ट्राइक पीओके में कर सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं, लेकिन उन पर स्ट्राइक भी बहुत जरूरी है जो भारत के अंदर ही बैठे हैं? मैं 2-3 अहम मुद्दे उठाना चाह रहा हूं जी। पहली बात तो हमारा जो ये कामयाबी है इसको हम अभी तक कितनी बड़ी कामयाबी है उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको बताता हूं जी। 7 फरवरी को पाकिस्तान के कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है। उन मीटिंग के अंदर में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष अपने हुक्मरानों के आदेश पर पाकिस्तान सेना को मोबिलाइज करते हैं और उनको उनके वेस्टर्न फ्रंट से भारत के जो ईस्टर्न फ्रंट है उनका ईस्टर्न फ्रंट है उस पर डिप्लॉय होने के लिए आदेश दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि 5-6 दिन के अंदर में उनको टाइम लगता है। तो तकरीबन 12 और 13 तारीख को पाकिस्तान की पूरी सेना हमारे बॉर्डर पर डिप्लॉय हो चुकी थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ में था और उसने समय भी ये चुना कि जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस वहां विजिट कर रहे हैं ताकि वो भारत कुछ भी रिटेलिएट करे तो उसको वो उसको राजनीतिकरण कर सके। उसके बाद में जब 14 तारीख को ये पुलवामा के अंदर में पाकिस्तान की ISI की मदद से ये किया गया, तो
तो ये टाइमिंग देखिए। अब हमारे देश की कामयाबी को देखिए जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे देश की वायुसेना ने अपनी एयर पावर जो पोखरण में वहां पर अपना जो ताकत दिखा दी थी। पाकिस्तान की पूरी सेना बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, उसके बावजूद भी हमारे 12 मिराज विमान, एक दो विमान नहीं साहब, 12 मिराज विमान 1,000 टन के TNT को लेकर और इतने घने जंगलों के अंदर में लेजर गाइडेड एम्यूनिशन के साथ में पिन पॉइंटेड अटैक कर उनके 3 और खासतौर से बालाकोट के जो उनका मेन कैंप है उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है और मैं आपको दावे के साथ में बताता हूं कि चंद सालों बाद में इस एयर स्ट्राइक को, इस कामयाबी को दुनिया के देश मिलिट्री हिस्ट्री में अपने देश के सैनिकों को और अफसरों को पढ़ाया करेंगे। बिल्कुल।